CBSE, Class 10th, History, Nationalism in India. Introduction. In previous chapter, you saw the modern nationalism in Europe came to be associated with the formation of nation state, meant a change in people's understanding who they were and what defined their identity and sense of belonging. New symbol and icons, new songs and ideas forged new link and refined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. How did this consciousness emerge in India? In India, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti colonial movement because people began discovering their unity in the process of their struggle with colonialism. The sense of being oppressed under colonialism provided a shared bond that tied many different groups together, but each class group felt the effect of colonialism differently. Their experiences were varied and their notion of freedom were not always the same. Rise of nationalistic consciousness in India. National feelings were developed. In 1857, first independence war was fought. But no countrywide institution set up. So nationalism, not systematic being, emerging different regional groups in India, like as Bombay Association 1852, Madras Native Association 1853, Indian Association by S.N. Banerjee 1876. What are the factors of nationalism in India? Like as geographical unification, ब्रिटिशर्स ने पूरा इंडिया को जीत के एक सूत्र में बांध दिया था. रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल यूनिटी कर दिया था. रूल ऑफ लॉ तो पूरी इंडिया के सुख दुख एक समान हो गए थे. इससे एक जगह के जो प्रॉब्लम्स थी वो दूसरी जगह पे भी प्रॉब्लम्स हो रही थी. इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हो गई थी जिसने बहुत से लोगों को डिस्कशन करने में आसानी दे दी थी. इसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बाय ब्रिटिशर्स, transportation communication system was developed. So the national feelings were emerged since long time, but not a systematic national movement was started. National movement systematically started in 1885 when the Indian National Congress was founded. The initiative of A.O. Hume and Indian national leaders set up the Indian National Congress. Indian National Congress, founded by A.O. Hume, Dadabhai Nauroji, Firoz Shah Mehta, Badruddin Tayyabji, Gopal Krishna Gokhale were main
leaders. So, on the from the establishment of Congress, the national movement was systematically started. Indian national movement has three phases. First phase, moderate, 1885 to 1905. Second, extremist, 1905 to 1916. Third, Gandhian era, 1916 to 1947. The objectives of Indian National Congress were promoting national unity, representing aspiration of Indians, and to set a platform the different political leaders which discussed together और ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपनी बात रख सकें. मॉडरेट, जिनको नरमवादी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पॉलिसीज़ जो थी वो मॉडरेट थी, नरम थी, इसलिए इसको नरमवादी युग कहा जाता है. क्योंकि अभी कांग्रेस एक चाइल्ड के रूप में थी, अब शिशु के रूप में थी, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी. तो कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दे सकती थी कांग्रेस. सो मॉडरेट लीडर्स लाइक एस गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी. एक्सट्रीमिस्ट 1905 में आफ्टर बंगाल डिवीज़न द न्यू लीडर्स जॉइन द कांग्रेस. लाल बाल पाल, जो बहुत एग्रेसिव नेचर के थे और मानते थे कि अंग्रेज लोग भिखारियों से घृणा करते हैं, और वो मॉडरेट की जो नीति थी उसको भिखारियों की नीति बताते थे, जैसा उनका स्टेटमेंट है. तो ठीक है, तो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसको मैं लेकर रहूँगा. 1905 के बाद 1916 तक लाल बाल पाल और अरविंदो घोष मेन लीडर रहे, और इनकी पॉलिसीज़ एग्रेसिव पॉलिसीज़ थी, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे न्यूज़पेपर्स में एग्रेसिव लेख लिखना, एग्रेसिव भाषण देना. फेस्टिवल, न्यू फेस्टिवल वर स्टार्टेड, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, जिसमें गैदरिंग हो और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सके. What the Indian national movement launched by formation of INC, which led to the movement till independence. After 1916, गांधीयन एरा, इसलिए गांधीयन एरा कहते हैं क्योंकि यहाँ से लेकर और 47 तक मेन लीडर जिनको इंडिया ने फॉलो किया वो थे महात्मा गांधी. So, chapter had started from Gandhian era. Nationalism in India from 1914 to 34. First World War and Indian National Movement. इस समय the World War created a new economic and political situation. It led to a huge increase in defense expenditure, war loan, taxes and custom duties were raised and income tax introduced.
Through the war, price rise up, food shortage, crop failure, influenza epidemic, famine led to widespread anger among Indians. In villages, the soldiers were supplied for war, forcefully recruitment. So, in rural areas, caused widespread anger. In this situation, the Gandhiji came in India from South Africa. A successfully satyagraha. After the successfully satyagraha, in India, people hoped that their hardship would end after the war was over, but did not happen. In this situation, a new leader appeared. New leader, Gandhi, appeared and suggested a new mode of struggle. Suggest new mode of struggle. What is the new mode of struggle? Satyagraha. By Gandhiji, Satyagraha, truth and non-violence. It suggested the struggle, if the struggle was against injustice, the physical force was not necessary. Satyagraha was compulsory, necessary for India, ऐसा महात्मा गांधी सोचते थे. And Mahatma Gandhi believed that this dharma of non-violence could unite all Indians. And best tool to get the independence for India. Earlier Satyagraha was 1916 in Champaran, 17 in Kheda, Gujarat, 18 in Ahmedabad, Gujarat. In 1919, Rowlatt Satyagraha was launched by Mahatma Gandhi. Rowlatt Act was a injustice law in which the act had given enormous power to the British government to allow detention of political prisoners without trial for 2 years. इसे बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती. सो इस अत्याचारी कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सत्याग्रह करने का निर्णय लिया और 6 अप्रैल हड़ताल से इसको स्टार्ट किया. रैलीज, demonstration, boycott, and other ways used by the satyagrahis. Local leaders, but local leaders were picked up. Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. 10 April, the police Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on bank, post office, railway station. So the British government imposed a martial law, but people were not aware. General Dyer took command.
और इसके बारे में जालियांवाला बाग के रूप में इसका अंत हुआ। लोग बैसाखी के दिन इकट्ठे हुए और जनरल डायर ने बिना कोई अलार्म दिए लोगों को शूट करने की आज्ञा दी। His object was declared later was to produce a moral effect in India. जालियांवाला बाग ट्रेजेडी कहते हैं कि उस समय की सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। ये आप देख रहे हैं जालियांवाला बाग, जनरल डायर और बुलेट मार्क on the building. So, after Rowlatt Satyagraha, the dissatisfaction was increased in India. Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India. But without any support of the other communities, it is not possible. So Gandhiji meet to the Ali brothers, which formed the Khilafat committee, and Mahatma Gandhi joined the Khilafat movement, and Khilafat movement merged the NCM, non-cooperation movement. Mahatma Gandhi adopted the Khilafat issue. What was the Khilafat issue? पूरी दुनिया के मुसलमान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हारे हुए टर्की के साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट व्यवहार कर रही थी और टर्की के राजा की जो स्पिरिचुअल पावर है, खलीफा की पावर, वो छीन ली थी। इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन चला रहे थे। उसी को खिलाफत मूवमेंट कहा जाता है, टर्की के फेवर में। भारत में भी चला और गांधी जी ने उसको सपोर्ट दिया। तो पहली बार गांधी के साथ अदर कम्युनिटीज़ ने मिलकर एक नेशन वाइड मास मूवमेंट शुरू किया। At the Calcutta session of Congress in September 1920, he convinced other leaders of the need to start a NCM in support of Khilafat as well as for Swaraj. NCM 1920, which introduced in September 1920 and finally accepted the Nagpur session 1920. What are the factors? Demand of Swaraj not met after the First World War, Khilafat movement, oppressive policies of British government, confidence of Mahatma Gandhi, exploitation by British government, racial policy used by the British government. So how the NCM become a mass movement? What are strategies? There are two types of strategies: constructive program and negative program, destructive program, negative program. Constructive program were use Swadeshi. What Swadeshi? Goods and services, basic schools,
Indian schools like as Gurukul, Maktab, basic schools, पंचायतें, हर चीज़ स्वदेशी हो। खादी, चरखे के द्वारा बनाया गया खादी सिंबल बन गया। वुमेन एजुकेशन, एजुकेशन स्प्रेड की जाए, वुमेन एजुकेशन पर फोकस किया। कास्टिज्म के अगेंस्ट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किया और दलित को हरिजन का नाम देते हुए सम्मानजनक स्थिति में लाए। बाइकॉट प्रोग्राम, बाइकॉट एवरी फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन होने वाले थे उनका बाइकॉट किया जाए और पिकेटिंग ऑफ लिक्वर शॉप्स और गाय वगैरह का काटना बंद किया जाए। अब देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ एनसीएम, हाउ इट स्प्रेड इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया, middle class adopt the meaning of Swaraj, real meaning of Swaraj, which given by Mahatma Gandhi. उनको फॉलो करते हुए उन्होंने सभी इंग्लिश मीडियम स्कूल, कॉलेज, कोर्ट सर्विसेज, पुलिस, आर्मी के सब सर्विसेज वगैरह का बाइकआउट किया और खादी का प्रयोग किया। केवल एक मद्रास की जस्टिस पार्टी जो नॉन ब्राह्मण पार्टी थी वो केवल पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, ये कहते हुए कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। पिकेटिंग की गई, डेमोन्स्ट्रेशन किए गए, लेकिन ये ज़्यादा समय तक शहरों में नहीं हो पाया क्योंकि जितना तेज़ी से बाइकॉट हुआ उतना तेज़ी से स्वदेशी उत्पादन नहीं हुआ। खादी बहुत महंगा, हर किसी के बस का नहीं था। These were slow to come up. Teachers, student, advocate, and other employees back to the government school and lawyer back to the courts. Spread in countryside. In countryside, सबसे बड़ा मूवमेंट अवध में हुआ। बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में, जो कि एक सन्यासी थे, एक फीजी के एक इंडेंचर्ड लेबरर थे, किसानों की एक सभा बनाई गई 1920 में, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। ये आंदोलन बेगारी के विरुद्ध था और जमींदारों और तालुकेदारों का जो अत्याचार था किसानों पर, उसके विरुद्ध था। गांधी के नाम पर इस मूवमेंट में लोकल लीडर्स ने टैक्सेस पे नहीं किए, रिकॉर्ड जला दिए, इस तरह की घटनाएं करके गांधी के नाम पे उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया। फॉरेस्ट में ये आंदोलन सबसे बड़ा
रूप गुडन हिल्स में आंध्रा में लिया, जहां अलूरी सीताराम राजू उनके लीडर थे और जिन्होंने गुरिल्ला वॉर के रूप में शुरू किया। इन्होंने स्वराज का मीनिंग फॉरेस्ट में एंटर करने से लिया, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट से बैन हो गए थे फॉरेस्ट, जिससे इनकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। तो फॉलो करते हुए ये सीताराम राजू के नेतृत्व में गंभीर प्रयास हुए, लेकिन कहीं कहीं पर ये वायलेंट हो गए। गुडम रेबल अटैक्ड द पुलिस स्टेशन, attempt to kill British official, for achieving Swaraj, but Raju was captured and executed in 1924. आसाम के प्लांटेशन वर्कर ने स्वराज का मीनिंग लिया कि अपने घर चलें, अपने गांव चलें, और गांधी ने कहा कि उनको वहाँ पर सबको ज़मीन मिलेगी। क्योंकि प्लांटेशन वर्कर बहुत दुखी थे, उनका बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में ये कह दिया गया था कि प्लांटेशन वर्कर को कहीं भी प्लांट से निकलने का अधिकार नहीं है, इवन अपनी फैमिली से भी वो संपर्क नहीं कर पाते थे। जैसे ही गांधी का एनसीएम स्टार्ट हुआ, they believed that Gandhi Raj was coming. Everyone would be given land in their own village. But they never reached their destination because railway, steamer strike what happened? They were caught by the police and brutally beaten up. इसी समय एक बड़ी घटना घटी चौरी चौरा गोरखपुर में, जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन के समय सत्याग्रहियों के साथ पुलिस वालों का झगड़ा हो गया और सत्याग्रही भी हिंसक हो गए और पुलिस चौकी जला दी गई। जैसे ही आंदोलन हिंसक हुआ, एनसीएम कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। गांधी ने यह कहा कि इसलिए कॉल्ड ऑफ किया गया है क्योंकि अभी सत्याग्रही पूरी तरह ट्रेंड नहीं हुए हैं। और हिंसक हो गया है आंदोलन। इसी समय स्वराज पार्टी was formed by C.R. Das or Motilal Nehru within the Congress. Swaraj Party had a obstacle policy in British गवर्नमेंट। वहाँ इलेक्शन में भाग लेके वो कार्यवाही में बाधा पहुँचा के उन कानूनों को पास नहीं करवाना चाहते थे जो भारतीयों के हित में न हो। Now we read the civil disobedience movement.
launched in 1930. What are the factors? Factors are global economic recession of 1929. पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आया हुआ था, बेरोजगारी बढ़ गई थी, कैश ख़त्म हो रहा था, गरीब बढ़ रहे थे, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो रहा था, फैक्ट्री बंद हो रही थी, एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर चुके थे, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था। तो by 1930 the countryside was turmoil. इसी समय सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में साइमन कमीशन भारत आया टू सर्वे द condition of India. Tory government in Britain constituted a statutory commission under Sir John Simon. बट इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसके 7 मेंबर में से एक भी भारतीय नहीं था, जिसकी वजह से साइमन गो बैक के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए और ये असफल रहा। Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of Dominion states, but not accepted by the Indians. Roundtable conference were held in 1920, 1930, 31, 32. 1930 में गांधी जी ने CTM स्टार्ट कर दिया था, कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए कांग्रेस एक बड़ी संस्था थी, उसके बिना वो सफल नहीं हुआ। 1931 में गांधी जी और अदर पॉलिटिकल पार्टीज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए गए, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स के इशू को लेकर अंबेडकर और गांधी के बीच में एक समान कोई विचारधारा नहीं बन पाई और बिना किसी रिजल्ट के वापस आना पड़ा। 1932 में फिर कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल नहीं हो पाई। इसी समय लाहौर सेशन 1929 में लाहौर सेशन हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने और इसमें पहली बार कंप्लीट इंडिपेंडेंस कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया और गांधी जी ने एक नया आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको साल्ट मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, साल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, को इंट्रोड्यूस किया और वो उसके लिए स्वीकृति दी गई। महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के सामने 11 डिमांड्स रखी। उनमें कुछ ऐसी डिमांड्स भी थी जो लॉर्ड इरविन एक्सेप्ट नहीं करे और CDM स्टार्ट हो गया। महात्मा गांधी जब डिमांड एक्सेप्ट नहीं हुई तो स्टार्टेड हिज फेमस साल्ट मार्च, अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ अपने साबरमती के आश्रम से निकले डांडी जाने के लिए। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स। लगभग 24 डेज चलते हुए 10 मील लगभग रोज गांधी जी 6 अप्रैल को डांडी पहुँचे और उन्होंने साल्ट बनाकर, साल्ट एक सिंबल था CDM का, सिंबॉलिकली उन्होंने सी वाटर से नमक बनाया
Why the salt was symbol? Because ये रिच और पुअर के बीच में इक्वल इस इक्वल इसकी ज़रूरत थी, और ऐसा करके एक ऑप्रेसिव फेस दिखाना चाहते थे गांधी जी ब्रिटिशर्स का, इकोनॉमी पे अटैक भी करना चाहते थे, और एक पुअर की एक मिनिमम रिक्वायरमेंट भी साल्ट थी. Now we see the participant groups in civil disobedience movement. ये मूवमेंट तेजी से फैला, हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया. हर ग्रुप ने इसमें भाग भी लिया. कई जगह हजारों लोग बंदी बनाए गए, जेल में डाले गए. कई जगह पुलिस के साथ क्लैशेस भी हुए. खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंट में सक्सेसफुली सत्याग्रह किया. इसके अलावा एक शोलापुर की घटना भी ज़्यादा लाइट में आई, जिसमें ब्रिटिश रूल के खिलाफ विद्रोह हुआ. इसमें भाग लेने वाले जो ग्रुप थे, उनमें रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इंडस्ट्रियल वर्कर और महिलाएं भी थी. रिच पीजेंट्स जैसे गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट, बहुत परेशान थे ब्रिटिश पॉलिसी से, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया. पुअर पीजेंट्स जो थे वो रेंटेड से बड़े परेशान थे, क्योंकि लैंडलॉर्ड अपना रेवेन्यू देने के लिए लगातार रेंट बढ़ा रहे थे. ऐसी कंडीशन में दोनों के कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट की वजह से कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट नो रेंट कैंपेन इन मोस्ट प्लेसेस. So the relationship between the poor peasants and the Congress remained uncertain. इस आंदोलन में इंडस्ट्रियलिस्ट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्योंकि वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उनका ट्रेड जो था वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था इनकी वजह से, अंग्रेज़ों की वजह से. इसलिए वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे. 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का निर्माण हुआ, और 1927 में फिक्की का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. जी.डी. बिरला, पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, बड़े बड़े इंडस्ट्रिस्ट जो हर तरह से गांधी को सपोर्ट कर रहे थे. लेकिन इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास उतना बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले पाई. क्यों? क्योंकि इनके और इंडस्ट्रियलिस्ट के जो इंटरेस्ट थे वो कॉन्फ्लिक्ट थे, अगेंस्ट थे. इनका जो डिमांड्स थी वो इंडस्ट्रियलिस्ट के अगेंस्ट थी. So, boycott
foreign goods, disturbed the trade, इन सब की वजह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और कन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ की वजह से लिमिटेड रहा। वुमेन ने भी लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेट किया, बट ड्यू टू आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी it was the symbolic. What are the limitations of CDM? Symbolic role of women, lack participation of some communities like as Muslim and Dalit. 1920 में मुस्लिम्स ने गांधी का साथ दिया था, लेकिन 1922 में मुस्लिम्स का ये कहना था कि खिलाफत मूवमेंट उसके साथ मर्ज हो गया था, तो हम पूरी सपोर्ट में थे, लेकिन जब कॉल्ड ऑफ हुआ एनसीएम तो उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। इसलिए मुस्लिम्स जो थे वो थोड़े उदासीन थे। और दलित, क्योंकि अंबेडकर दलितों के मसीहा कहे जाते हैं, he organized the Depressed Class Association 1930 और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर दलितों के लिए काम किया। इसलिए दलित BR अम्बेडकर के साथ अधिक थे। तो नाइनटीन 1931 में गांधी जी एंड इरविन में डिस्कशन हुआ और गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ, जिसके अकॉर्डिंग गांधी जी कॉल्ड ऑफ द SALT movement and Irwin accept the political leaders छोड़ दिए जाएंगे और जो उनकी संपत्ति सीज की गई है वो भी वापस हो जाएगी। Nationalism after civil disobedience movement 1931 to 34. दलितों के अपलिफ्टमेंट करने के लिए दो बड़ी पर्सनालिटी थी, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर। महात्मा गांधी सोशली कंडीशन इम्प्रूव करना चाहते थे दलित्स की, जबकि अम्बेडकर पॉलिटिकली, और यही सबसे बड़ा अंतर था। और यही डिफरेंस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में दिखाई पड़ा। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ जो क्लैश हुआ अम्बेडकर का, किस प्रश्न पर? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स को लेकर। गांधी जी बिलीव्ड that separate electorate for Dalit would slow down the process of their integration into society. समाज टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि 1909 में जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था, उसका परिणाम इस समय पाकिस्तान हो रहा था, देश बंटने के कगार पर था। तो अगर दलित्स के लिए एक्सेप्ट किया जाता तो इनका कहना था कि पता नहीं कितने भागों में देश बंट जाएगा। सो वहाँ से आने के बाद
Gandhi began a fast unto death. Ultimately, Ambedkar accepted Gandhiji's position and the result was the Pune Pact 1932. गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, या कहें कि इंडियन लीडर्स के बीच में 1932 में एक समझौता हुआ जिसमें डिप्रेस्ड क्लास को, जिसको कि शेड्यूल कास्ट कह सकते हो, रिजर्व सीट उनको दी गई प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्शन. तो अंबेडकर accept the general election and Gandhi accept the reserve seat for Dalits. It is called Pune Pact 32. इस समय मिस्टर जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग के बड़े नेता के रूप में उभर रहे थे और उनकी सब मेन थ्योरी थी टू नेशन थ्योरी. टू नेशन थ्योरी मीन्स कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग नेशनैलिटी हैं और ये एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इनको अलग अलग हो जाना चाहिए. इतना डिस्टेंस हो चुका है कि ये एक जगह सरवाइव नहीं कर सकते. बहुत कोशिश की गई समझाने बुझाने की. मोहम्मद अली जिन्ना और अदर जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, 1928 में M.R. जैकर ने, जब M.R. जैकर से क्लेशेस हो गया तो उसके बाद ये संभावना ख़त्म हो गई. कुछ समय बाद 1934 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू करा, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं हुआ जितना पहले वाला था. नेक्स्ट है ए सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. व्हाट डू यू मीन बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग? नेशनलिज्म. Nationalism spread when people begin to believe that they are all part of the same nation. When they discover some unity that bind them together. What are the factors? Which bound together? What are the factors? The popular print, fiction, folklores, history, and symbols. पॉपुलर प्रिंट. सबसे अधिक जो पॉपुलर प्रिंट भारत में लोकप्रिय हुआ वो था भारत माता की तस्वीर, इमेज ऑफ भारत माता, विच क्रिएटेड बाय B.C. Chattopadhyay in 1870 and later on Abhindranath Tagore. जैसे जैसे नेशनलिज्म डेवलप हुआ वैसे वैसे भारत माता की तस्वीर भी बदलती गई. दो तस्वीर दिखाई जाती हैं इनकी, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं. नेशनलिज्म के स्टार्टिंग की जो भारत माता की तस्वीर है वो बहुत ही काम एंड कूल एंड स्पिरिचुअल एक्सप्रेशन लिए हुए है, जबकि बाद के जो नेशनलिज्म के जैसे जैसे नेशन डेवलप हुआ वैसे वैसे तस्वीर भी चेंज हो गई और भारत माता की तस्वीर के साथ बहुत सारे सिंबल जैसे एलिफेंट अपनी देश की विशालता के लिए, टाइगर जैसे पावर के लिए, त्रिशूल, ये सब चीज़ें सिंबॉलिक वे में आती चली गई, जो दिखा रहा था कि नेशनल मूवमेंट अब कितना पावरफुल बनता जा रहा है. तो जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट पावरफुल हुआ वैसे वैसे भारत माता की तस्वीर भी
मॉडिफाइड होती चली गई। दूसरा फैक्टर फोकलोर्स। कहते हैं कि किसी देश की अगर आपको सही पिक्चर देखनी है तो गांव में जाएं। फोकलोर्स किसी भी देश की असली विरासत होती है। इस विरासत को नॉर्थ इंडिया में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी छोटी छोटी लघु कहानियाँ, लघु कविताएं के माध्यम से संगठित किया, इकट्ठा किया, कलेक्ट किया। और साउथ में, जैसे कि आप देख रहे हैं, साउथ में नैस्य शास्त्री, जिन्होंने साउदर्न फोकलोर्स को संगठित किया, कलेक्ट किया। Folklore was national literature. It is the most trustworthy manifestation of the people's real thought and characteristics. As the national movement developed, nation's leaders became more and more aware of such icon and symbol, which unifying people and inspiring in them a feeling of nationalism. सबसे पॉपुलर जो सिंबल थी वो फ्लैग यूज किए गए। फर्स्ट फ्लैग ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट in 1906 in Bengal, a tricolor flag, red, green, and yellow, was designed. Eight lotus representing each province and crescent moon, sun represent the religion, main religion in India. After this, by 1921, Gandhiji had designed Swaraj flag. It was again a tricolor, but red, green, and white, and had a spinning wheel in the center, which is representing the Gandhian ideal of self-help. Carrying the flag, holding it aloft during marches became a symbol of defiance. Next factor was a reinterpretation of history. It is another means of creating a feeling of nationalism was through reinterpretation of history. Indian history had to thought about differently. The British saw Indian as backward and primitive, incapable of governing themselves. In response, Indians began looking into a past to discover India's great achievement. They wrote about the glorious development in ancient time when art and architecture, science, mathematics, religion, culture, law, philosophy, craft, and trade had flourished in the world. This glorious time, in their view, was followed by a history of decline when India was colonized. So the reinterpretation of history give the pride to the Indians for the great achievement in the past. और जो भी ये मिजरेबल कंडीशन है, जो भी इस समय इंडिया की कंडीशन है, वो ब्रिटिश रूल के बाद की है। तो इसने लोगों में भारतीय होने का गर्व पैदा किया। These efforts to unify people were not without problem, but एंशियंट इंडिया को डिस्कवर करते हुए, उसको प्रमोट करते करते कुछ कम्युनिटीज
अलग हो गई, उनमें मतभेद पैदा हो गए। क्यों? When the past being glorified was Hindu, when the images celebrated were drawn from Hindu iconography, then people of other communities felt left out. ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट था कि हिंदुइज्म को एक्सप्लेन करते करते जो अदर कम्युनिटी थी इंडिया की, वो दूर होती चली गई और उनमें मतभेद पैदा होता चला गया। ये 1906 में डिज़ाइन किया गया फ्लैग और गांधी जी के द्वारा जो चेंज किया गया था 1931 में कराची सेशन में इसको एक्सेप्ट किया गया और 47 में इसको थोड़ा मॉडिफाइड करके ये रूप दिया। थैंक यू।